of synchronous generator connected with the grid. While saying the synchronous generator, we were studying the motion of, that is angle, acceleration and speed of the rotor with respect to the synchronizing flux, that is the rotating flux. And now later on we told it may not always happen that there is a one generator connected with the grid. Number of generators may be connected with the grid, and we told if number of generators connected at the same bus, at the same bus, then all the generator swings with each other incoherent to each other, means they will accelerate and deaccelerate simultaneously. In that case, that group is called as a coherent group or one control area, one control unit. And such type of group of generators can be connected, can be assumed as a one equivalent machine. Then such generator can be made as a one equivalent machine, where while doing this, yesterday we derived this formula that equivalent H, if the number of generator having the different inertia constant H1, H2, Hn, then the equivalent inertia constant by making all generator equivalent to the one generator will be given by H1, S1, H2, H2, S3, S3, Hn, Sn, and divided by S base. Or and H is equal to M is equal to H by pi f. So it is H by pi f. We can find the M. And if rating of each generator is same, means S1, S2 is same. S1 is equal to S2 is equal to S3 is equal to base. We have, if the rating of all the machines are same, then S1, S2, Sn, they will be cancelled with this as base, and H equivalent will be the H1 equivalent plus H2 equivalent, H1 per unit plus H2 per unit plus H3 per unit. So in this way, similarly, this H equivalent by pi f, because this is the same in per unit. If it is in per unit, then we can find the inertia electrical angular momentum M. And in this way, all the machine, after converting into equivalent one, we can solve it in the same way. Either it is dynamic analysis, transient analysis, as we did earlier. Now, this is the review what we discussed in the previous class. Is there any question in this? No, sir. Okay. Now it may not always happen that all the generators are connected at a one bus, or all the machines are connected at a one bus. Let us have some different cases also. The two machines connected through transmission line. मतलब एक बस से सभी जनरेटर कनेक्टेड नहीं है. Say this is a bus and one generator here, another generator here, another generator here. They all connected. They can be called as a connected in parallel, or you can say all the generators are supplying the same load. That's why they were making the coherent group. Now, in this case, two machines like this, one generator and another motor, they are connected through a transmission line. They are not at a one bus. This is a transmission line. They are connected through a transmission line. In such cases, how to solve the swing equation? If this generator and this machine are connected through a transmission line, and reactance of the transmission line is given. This is the reactance of the transmission line. So this is a generator supplying. It is taking the mechanical. It is generator through the turbine. It is taking the mechanical power equal to PT or PM. We earlier called it as a PM, but let me call it as a PT, as a turbine power. So no problem. It PT or PM is the same. Mechanical power or turbine power is entered to the rotor of the generator. Then its generating power is PG, or you can say PE. Earlier we called it as a PE, electrical power output. And through this electrical power is going through a transmission line to this motor. So this electrical power is equivalent to the electrical power supplying to the motor, synchronous motor. It is synchronous generator, it is synchronous motor. And this power, when this electrical power is going to the motor, there is a rotating flux in the stator of this synchronous motor. Then rotor is coupled with the rotating flux, and rotor also rotates. Here let us have the angle between rotor, since it is generator,
द रोटर इज रोटेटिंग अहीड देन द रोटेटिंग फ्लक्स। यहाँ ये जनरेटर है तो रोटर का एंगल ज्यादा है रोटेटिंग फ्लक्स से, तो रोटर और रोटेटिंग फ्लक्स के बीच का एंगल सपोज डेल्टा वन है, मीन्स रोटर इज अहीड देन द रोटेटिंग फ्लक्स बाई डेल्टा वन। और ये जो डेल्टा वन है स्टेटर का फ्लक्स, स्टेटर फ्लक्स का एंगल है, द सेम एंगल विल बी हियर बिकॉज सेम करंट, सेम पावर, सेम करंट इज गोइंग टू दिस स्टेटर, इसमें जा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल पावर में जा रहा है। और जब ये इसमें रोटेट कर रहा है विद द सेम एंगल एज ऑफ दिस डेल्टा वन, देन द रोटर ऑफ दिस विल बी लैगिंग बिहाइंड दिस, बिकॉज ये क्या मोटर है, ये आगे रन कर रहा है रोटेटिंग फ्लक्स, इसके पीछे पीछे ये इसका रोटर रोटेट कर रहा है, इसके एंगल डेल्टा टू है। तो इस एंगल, इस रोटर और इस रोटर के बीच का एंगल डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू हुआ। ओके, नाउ एनीवे द पावर आउटपुट फ्रॉम हियर, यहाँ से पावर कितना जा रहा है, पावर इज इक्वल टू दिस पीई and power entering to this is PE. Now if you write the swing equation for this, PT is the mechanical power, PG is the electrical power output, so PT minus PG will be responsible for acceleration in this, and PT minus PG is equal to md square delta 1 by dt square. Okay, m is the electrical angular momentum, इसके लिए हो गया फर्स्ट मशीन। m1 इस मशीन के लिए m1 d square delta 1 by dt square PT minus PG। डेल्टा वन क्या है? यस मिस्टर जगवीर, व्हाट इज डेल्टा वन? डेल्टा वन क्या है? तनु, व्हाट इज डेल्टा वन? जनरेटर वन का पावर एंगल है सर। हाँ, इसका पावर एंगल है। ओके, so this is the equation. Okay, now equation for this, इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, PG इनपुट है, PT आउटपुट है, बिकॉज वी हैव कंसीडर नो लॉसेस इन केस ऑफ द स्टेबिलिटी एनालिसिस, वी नॉर्मली neglect the losses because losses does not have any additional information, it does not give any additional information other than the damping. Only whatever the result will come, that this is the magnitude of oscillation and then this is the frequency of oscillation. There is no difference even if we consider the some losses. Only thing, damping will be there because of the resistance, because of the losses, only damping will be there. But other than this, there is no additional information is obtained by considering the losses. So that's why we normally neglect the losses here. So this PG minus PT, because PG is the input and this is PT. PG minus PT is equal to m2 d square delta by dt square. Okay. So this is the equation for this, m2 d square delta, and where delta is the delta 1 minus delta 2, दोनों के बीच का पावर एंगल है delta 1 minus delta 2, दोनों रोटर के बीच का एंगल पावर एंगल है delta 1 minus delta 2. So if you double differentiate this, if you double differentiate this equation, this will be d square delta t square minus d square delta 1 by dt square, d square delta 2 by dt square. Okay, here d square delta 1 by dt square can be written from here PT minus PG by m1. From here it can be written as PG minus PT by m2. ये आ गया. In this way we can write this. Here if you take PT minus PG out, because this is minus, so this minus minus will be plus, PT minus PG 1 by m1 plus 1 by m2. And this will be the m1 plus m2 by m1 m2. This will go on this side. Then this will be formula like this, m1 m2 by m1 m plus m2. d square delta by dt square PT minus PG. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि this is the swing equation of the overall system. अगर two machines are connected through a transmission line, then the equivalent swing equation will be this. अलग-अलग solve करने की बजाय this is the equivalent machine where m will be equal to m1 m2 divided by m1 plus m2. m हर एक का individual electrical angular momentum है m1 and m2, then equivalent angular momentum, electrical angular momentum will be this, and this will be the equation for swing equation. इसकी equivalent अगर हमने m equivalent, now you can write the m equivalent d square delta by dt square pt minus pg. और इस equation को solve करना आपको मालूम है कैसे solve करते हैं. डायनेमिक एनालिसिस करेंगे तो कैसे solve करते हैं, ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे तो कैसे solve करते हैं. You know both depending upon the case. Now डायनेमिक एनालिसिस का एनालिसिस करना है या ट्रांजिएंट एनालिसिस करना है, अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व. इन केस ऑफ डायनेमिक एनालिसिस रेगुलेटेड सिस्टम है, अनरेगुलेटेड सिस्टम है,
और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है अंडर रूट p/m, वैसे आप निकालते हैं, दैट यू विल अप्लाई हियर इन केस ऑफ ए पॉइंट बाय पॉइंट मेथड और स्टेप बाय स्टेप मेथड। इसको हमने रंगा कुट्टा मेथड और स्टेप बाय स्टेप मेथड ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, so this is the and same this if you you know m is equal to h by pi f. If you write m is equal to h by pi f, equivalent h will be this, because pi f is same, frequency is same throughout, so this will be equivalent h. Now swing equation of two coherent machines. टू कोहेरेंट मतलब क्या है? दो मशीन एक ही बस पे कनेक्टेड है, जैसे ऊपर स्टार्टिंग में बताया था, टू मशीन्स आर कनेक्टेड विद द सेम बस। तो सेम बस है तो कोहेरेंट बनाएंगे। कोहेरेंट मींस अगर कोई डिस्टरबेंस आया दोनों साथ साथ एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करते हैं, तो लेट और दे आर कॉल्ड इन पैरेलल। इन दैट केस दिस इज m 2h by omega, this is nothing but because if you write omega is equal to 2 pi f, it will be h by pi f, so same it is m, and one machine angle, power angle is delta 1, another machine is delta 2, so it is the equation for swing equation. It is taking one machine is taking power of pm1, it is giving electrical power of pe2, it is taking angle of power of pm2, it is giving power output as a pe2. So pe1 plus pe2 is the electrical load, net electrical load, and PM1 plus PM2 is the net mechanical power. PM1 एक मशीन से के थ्रू है, PM2 दूसरी मशीन के थ्रू है। तो these are the two separate equations, and since both the machines are connected with the same bus, इसका मतलब क्या है? दोनों का एक्सीलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन विल बी साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है? एक दूसरे के बीच में कोई एंगल नहीं होगा। सो पावर एंगल डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा, ये एंगल सेम है। कोहेरेंट ग्रुप है इसलिए दोनों का एंगल सेम है। सो मींस डेल्टा 1 इज डेल्टा, डेल्टा 2 इज डेल्टा। ओके, सो नाउ इफ यू ऐड द टू, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, सो PM1 प्लस PM2 इज PM, PE1 प्लस PE2 इज इक्वल टू PE। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2d² by delta t² will be taken out। ये देखो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 इज सेम, तो ये चीज बाहर आ जाएगी। और ये क्या है? 2h1 प्लस 2h2 by 2h1 प्लस 2h2 डिवाइड बाई ओमेगा विल बी दी दिस h इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इन सच केस h इक्विवेलेंट इज द h1 प्लस h2, pm इज इक्वल टू pm प्लस p2, p इज इक्वल टू pn प्लस। अगर दो कोहेरेंट ग्रुप हैं तो नेट पावर आप pm प्लस दोनों सभी की मैकेनिकल पावर इनपुट को आप ऐड कर सकते हैं, सभी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट को एक इक्विवेलेंट टू उनको सम करके इक्विवेलेंट पावर मान सकते हैं, सभी के इनर्शिया को सम करके को इक्विवेलेंट इनर्शिया निकाल सकते हैं। दिस इज सेम एज वी डिड अर्लियर। ये सेम चीज है, यहाँ पे सेम चीज ही है। H इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H1। अगर पर यूनिट में करेंगे, एवरीथिंग इज इन पर यूनिट ऑन ए कॉमन बेस, तो यहाँ से सेम निकल रहा है H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। यही चीज यहाँ है, सेम थिंग इज ऑब्टेन्ड हियर। तो कोहेरेंट ग्रुप के बीच में हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नाउ देयर मे बी नॉन कोहेरेंट ग्रुप। नॉन कोहेरेंट ग्रुप का मतलब क्या है? कि दोनों मशीन एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली कपल्ड होकर ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, बट देयर कैन बी रिलेटिव मोशन आल्सो। मतलब एक मशीन में पावर एंगल डेल्टा 1 जा रहा है तो दूसरे का डेल्टा 2 जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि if the two machines are connected to each other not directly through the same bus, but there can be some reactance between the two। अगर दो मशीन के बीच में कोई रिएक्टेंस है तो कोहेरेंट ग्रुप नहीं होंगे, उनके बीच में रिलेटिव एंगल आएगा। लेट रिलेटिव एंगल इज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। एक का एंगल डेल्टा 1 है, दूसरे का डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 1 2 मींस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज द रिलेटिव एंगल बिटवीन द टू। ओके, तो इसी इक्वेशन में इफ यू सी अबव, या देखिए
This is the equation for one machine, this is the equation for another machine, but they are not equal. इसमें जैसे ये equal थे, here delta 1 and delta 2 are not equal, they are different. So they are different with, and net angle will be the delta 1 minus delta 2. Net power angle will be delta 1 minus delta 2. Here it is different than here delta 2. So we can say net delta will be equal to delta 1 minus delta 2. Again come to this. So सर नॉन कोहेरेंट सर लोड पे डिपेंड करता है सर? नहीं, लोड पे नहीं, उनके वो एक ही बस पे कनेक्टेड है या एक दूसरे से डिस्टेंस पे कनेक्टेड है। अगर डिस्टेंस पे कनेक्टेड है तो उनके बीच में कुछ रिएक्टेंस होगी, उस रिएक्टेंस की वजह से साथ साथ नहीं चल पाएंगे। जैसे कि सपोज करिए, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप दोनों पार्टनर हैं, दो रूम, एक ही रूम में दो बच्चे रह रहे हैं, दोनों हाथ पकड़ के साथ साथ अपने लेक्चर के लिए आ रहे हैं एकेडमिक सेक्शन में, एकेडमिक में, मतलब आप अपनी क्लास के लिए आ रहे हैं साथ में हाथ पकड़ के, तो कोहेरेंट हो गए, एक भागेगा तो दूसरा भी भागेगा, उनके बीच में पावर एंगल मतलब दोनों का एंगल और डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। अच्छा, अब दो फ्रेंड हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है, एक सेकंड फ्लोर पर रह रहा है, और दोनों ने कहा हम 9 बजे साथ साथ निकलेंगे और साथ साथ पहुंचेंगे, लेकिन कितना भी आप साथ साथ निकलेंगे उनके बीच में कुछ एंगल ऑफ डिफरेंस आ जाएगा। एंगल मतलब उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट, एक होगा डिस्टेंस 30 मीटर पे, तो 29 मीटर पे हो सकता है, तो उनके तो उस डिफरेंस को मेंटेन करके हुए वो चल रहे हैं। दैट इज द नॉन कोहेरेंट ग्रुप। ये क्यों था? एक दूसरे के बीच में दोनों हाथ पकड़ के नहीं चल पा रहे थे, रिएक्टेंस थी, उनके बीच में कुछ रिएक्टेंस था, तो उसकी वजह से वो मैग्नेटिक लॉकअप की तरह नहीं चल पा रहे थे। नाउ अब इसमें देखिए, ये डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 है, इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर डेल्टा 1 डी टी स्क्वायर। ये जो दोनों को, या आप कहिए यहाँ पे ये इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ 2y ओमेगा एस। देखिए 2y ओमेगा एस, ये h1 को यहाँ ले आए, pm1 बाई pe1 बाई h1, 2y ओमेगा एस डेल्टा स्क्वायर d1 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, 2y ओमेगा एस डेल्टा स्क्वायर dt स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, h2 यहाँ आ गया, मीन्स ये h1 इधर आ गया, ये h2 इधर आ गया, ओके। और तो इसका 2y ओमेगा एस, इसमें से फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2y ओमेगा एस कॉमन आ गया, और 2y ओमेगा एस 2y ओमेगा एस दिस डी स्क्वायर डेल्टा 1 dt स्क्वायर, 2y ओमेगा एस डी स्क्वायर डेल्टा 1 dt स्क्वायर, ये pm1 माइनस pe1 बाई h1 ये, और pm2 माइनस pe2 बाई h2, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, h1 और h2 इधर लाने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई, ओके। अब देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वेशन आ जा रही है। नाउ व्हाट वी डिड, तो ये जो इक्वेशन है इससे जस्ट ऊपर एट पेज नंबर 619, इससे जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन, इसको आप या तो ध्यान से देख लें या नोट कर लें। देखो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देख लो, इसको आप ध्यान से जब देखेंगे, देखिए ये H2 का इसमें मल्टीप्लाई करें, PM1 H2 दिस PM1 H2 P1 H2, और ये इधर ले जाओ
PM2H1 एंड PE2H1, मतलब ये H1H2 इधर मल्टीप्लाई करें, नीचे H1 प्लस H2 आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए आप, जस्ट इफ यू मल्टीप्लाई दिस, जो इक्वेशन है ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें इसको मल्टीप्लाई किया, H1H2 बाई थ्रूआउटली H1H2, देखिए H1H2 H1 प्लस H2, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन दोबारा देख लो, इसमें ये H2 इधर H1 इधर और नीचे H1H2 है, ये H1H2 H1 प्लस H2 H1H2 डिवाइड बाई H1 प्लस H2 से डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा और नीचे H1 प्लस H2 आ जाएगा। तो दिस इक्वेशन विल कम, इसमें आप इसे करके देख लें दोनों, ये इक्वेशन विल कम। ओके, नाउ इस इक्वेशन को नाउ इफ यू कंपेयर दिस m और इट इज h/2 मेगा s d स्क्वायर डेल्टा, del 1 माइनस del 2 इज द डेल्टा 1 2 ऐसा डेल्टा 1 2, so this is the h12 d square delta by dt square, this can be called as a pm1, this can be called as a pe2। ये इसका मतलब क्या हुआ, अगर नॉन कोहेरेंट ग्रुप हैं, टू मशीन है नॉन कोहेरेंट है, उनके बीच का एंगल पावर एंगल डेल्टा 1 2 है दोनों के, जैसा आपने जब हम लोड फ्लो वगैरह करते हैं ना, लोड फ्लो स्टडी जब करते हैं तो दो जनरेटर के बीच का एंगल, हर एक बस का अपना अपना पावर एंगल आता है। कहते बस नंबर 1 का 0 है, बस नंबर 2 का 30 डिग्री है, बस नंबर 3 का 35 डिग्री है, बस नंबर 5 का 40 डिग्री, ऐसे पावर एंगल आता है। तो दोनों का जो पावर, अब बस नंबर 2 और 3 के बीच में 5 डिग्री का एंगल आ गया, तो वो ये एंगल हो गया। मीन्स वो क्यों आया था, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई रिएक्टेंस था, तो लोड फ्लो स्टडी से उसके अकॉर्डिंगली पावर एंगल कैलकुलेट हो जाता है। अब स्विंग इक्वेशन उस केस में अगर सॉल्व करना है पावर एंगल निकालने के बाद में, तो हम ये इस तरह सॉल्व करने के लिए, मतलब क्या हुआ कि उसका इक्विवेलेंट एच, अगर दो मशीन का रिलेटिव मोशन देखना है, उन दोनों का रिलेटिव डेल्टा कैसे चेंज होगा, मींस मशीन 2 और मशीन 3, मींस मशीन कनेक्टेड एट बस नंबर 2, मशीन कनेक्टेड एट बस नंबर 3, इफ दे आर ऑसिलेटिंग विद ईच अदर, तो उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, डेल्टा और टी के बीच में रिलेशन क्या होगा। और अगर ट्रांजिएंट एनालिसिस करने हैं तो क्या करेंगे, डेल्टा और टी के बीच में उनका रिलेशन निकालेंगे, डेल्टा और टी। और अगर डायनेमिक एनालिसिस करने हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इक्वेशन ये बन गई, अब उनके बीच का एंगल डेल्टा 1 2 है। इक्विवेलेंट एच विल बी गिवन बाय h1h2 डिवाइड बाय h1 प्लस h2, और इक्विवेलेंट m pm, equivalent mechanical power will be given by this equation and equivalent electrical power will be given by this equation h1 h2 के accordingly। तो in this way ये जस्ट इसमें फॉर्मूला में रख के ये इक्विवेलेंट pm इक्विवेलेंट pe आ जाएगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपको पता ही है, चाहे डायनेमिक एनालिसिस में कैसे सॉल्व करते हैं और ट्रांजिएंट एनालिसिस में कैसे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द नाउ केस। So in this way we can solve the swing equation, either it is a coherent group or non-coherent group, कैसे भी है। और sometime it happens, sometime कभी-कभी क्या होता है, पूरा का जब भी डिस्टरबेंस आता है पूरा का पूरा सिस्टम दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। sometime it may happen few groups, and if sometime it may be divided into two group and two coherent groups separately, one coherent group is oscillating with another core। तो सपोज करिए 10 मशीन है, 10 जनरेटर कनेक्टेड हैं, और 10 में से 6 जनरेटर एक ग्रुप में हो गई, 4 जनरेटर दूसरे ग्रुप में हो गई, 6 की इक्विवेलेंट एक मशीन बन गई, 4 की इक्विवेलेंट एक मशीन बन गई। और 6 का पावर एंगल कैसे ऑसिलेट कर रहा है वो आप अलग स्टडी कर सकते हैं, 4 मशीन का पावर एंगल कैसे मूवमेंट कर रहा है रोटर वो अलग स्टडी कर सकते हैं। और एक दूसरे के रिलेशन में 6 जनरेटर का इक्विवेलेंट एक बन गया, 4 का इक्विवेलेंट, दोनों आपस में किस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहे हैं वो आप भी स्टडी कर सकते हैं। तो हर एक के लिए सेपरेट, अगर सपोज करिए 2 ग्रुप बन गए तो कितनी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, एक ग्रुप का अपना फ्रीक्वेंसी डेल्टा 2, दूसरे का अपना फ्रीक्वेंसी डेल्टा 3, पावर एंगल डेल्टा 3, ऐसे ही एक दूसरे के रिलेशन में एंगल डेल्टा 2 और 3 के बीच का। तो ये 3 स्टडी करके हम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो ग्रुप ज्यादा बन गए, सपोज करिए ग्रुप 3 बन गए, तो
एंड ग्रुप नंबर 2, 3, 4, तो 2 का अपना ऑसिलेशन होगा, 3 का अपना ऑसिलेशन होगा, 4 का अपना ऑसिलेशन होगा, 2 और 3 के बीच का ऑसिलेशन, 3 और 4 के बीच का ऑसिलेशन, एंड 4 और 2 के बीच का ऑसिलेशन। हर एक की एक सेपरेट स्विंग इक्वेशन बन जाएगी, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ तो इन दिस वे देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन द सिस्टम। अब हमें ये समझ में आ गया, एक तो हर एक की अपना ऑसिलेशन होता है, और एक दूसरे के रिलेशन में रिलेटिव ऑसिलेशंस होते हैं। तो उसके बेसिस पे भी कॉल इट एज ए मोड ऑफ ऑसिलेशंस। यहाँ देखिए एक फिगर दिखाया गया है, इसमें दिस G1 and G2 are two generators connected at one power plant। सपोज करिए ये पानीपत थर्मल स्टेशन है, सपोज इट इज ए पानीपत थर्मल स्टेशन, एंड उस पर 2 जनरेटर हैं G1 and G2। इट मे बी मोर आल्सो, बट लेट इट बी 2 जनरेटर्स कनेक्टेड एट वन पावर प्लांट, लेट इट बी पानीपत थर्मल स्टेशन। और ये दोनों जनरेटर क्या है, ये जनरेटर एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर ऑसिलेट करेंगे तो उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज कॉल्ड द इंट्रा प्लांट मोड्स। एक ही प्लांट में 2 जनरेटर एक दूसरे से अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, देखिए अदरवाइज तो सिंस अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्टडी क्या किया था कि अगर दोनों जनरेटर सेम बस से कनेक्टेड है, मतलब इनके बीच में कोई नेग्लिजिबल रिएक्टेंस है डायरेक्टली, इसका रिएक्टेंस इसका कुछ नहीं है, ये डायरेक्टली इस ग्रिड से कनेक्टेड है, तो दोनों साथ साथ ऑसिलेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दोनों का सेम होगा, बट इट इज नॉट 100% आइडियल, एंड देयर इज सम रिएक्टेंस, इन दोनों के बीच में कुछ रिएक्टेंस भी होता है। दैट्स व्हाई देयर कैन बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन G1 एंड G2 आल्सो। इनके बीच में भी एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो सकता है। दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मे बी और नॉर्मली इन द रेंज ऑफ 1.5 to 3 हर्ट्ज। इनके बीच में 1.5 मीन 1.5 से 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे एक दूसरे के बीच में, और इसके कंपैरिजन में ये सपोज 2 हर्ट्ज से ऑसिलेट कर, एक सेकंड में 2 टाइम्स रिलेटिवली ऑसिलेट करेगा। दिस इज कॉल्ड द इंट्रा प्लांट मोड्स, इसे इंट्रा प्लांट मोड्स कहते हैं। एंड दिस इज ए वन पावर प्लांट, it is another power plant, say it is a Panipat thermal station, it is a Khedar thermal station, and they all are in a one control area। one control area का मतलब they are in the same हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, दे हरियाणा यूटिलिटी सिस्टम, हरियाणा के अंदर ही दोनों हैं, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज वन कंट्रोल एरिया। इफ इट इज वन कंट्रोल एरिया, देन ए पावर प्लांट of one oscillate with the power plants of another power plant. The relative oscillation between this and this is called the local modes of oscillation. So local modes in which generators of an area oscillate, एक ही एरिया के जनरेटर्स आपस में जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं उसे लोकल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। नॉर्मली इट्स फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द इंट्रा प्लांट modes frequency। If it is a 2-3 hertz, then it can be 1-2 hertz. Relative motion it can be 1-2 hertz. Here it is in 1.5 to 3 hertz, 0.8 to 1.8 hertz. Now this one control area, the plants of the generator of this as a whole oscillate with another control area। ये हरियाणा के सारे जनरेटर पंजाब के जनरेटर के बीच में हर एक अपने, देखिए ये अपना भी ऑसिलेट कर रहा है, ये अपना भी कर रहा है, एक दूसरे के कंपैरिजन में भी कुछ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका इसके कंपैरिजन में भी कुछ फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही इस पूरे के पूरे सारे के सारे इसके मतलब हर एक जनरेटर में बहुत सारे, एक तो अपने 50 हर्ट्ज पे तो रन कर ही रहा है, उसके अलावा ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। इसमें भी अदर देन दिस इसका भी एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ कर रहा है और पूरे के साथ भी कर रहा है। सो ईच जनरेटर इज सफरिंग वेरियस मोड्स, वेरियस ऑसिलेशंस, and this group of generator when oscillate with another control area of generators, then it is called the intra area modes। इसे इंट्रा एरिया मोड कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आपका ये बढ़ता जाता है, साइज डिस्टेंस बढ़ता जाता है,
the frequency of oscillation decreases and this frequency of oscillation may be in this range 0.2 to 0.5 Hz. इसका इसके बीच में फ्रीक्वेंसी का इसका this is very less. But any type of oscillations are there, they are not useful, they are harmful. कोई भी oscillations है वो हमेशा harmful है. तो इनको all modes of oscillations को स्टडी करने के लिए हमने क्या बताया, पहले तो आप ऐसे लोड फ्लो स्टडी करके इनिशियल पावर एंगल निकाल लेंगे हर एक का, और जिसका भी निकालना है, इसका निकालना है तो इसकी स्विंग इक्वेशन ग्रेड के साथ बन जाएगी, इन दोनों का निकालना है तो रिलेटिव बन जाएगा, इसका इसके बीच में निकालना है, इसका इक्विवेलेंट एक बना लिया, इसका इक्विवेलेंट एक बना लिया और डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करके ये बनेगा, ऐसे ही ये. सो डिफरेंट इक्वेशन कैन बी फॉर्म टू स्टडी द डिफरेंट दिस. तो एक तो मेथड ये हो गया, इंडिविजुअल हर एक मोड को स्टडी करें, इसका मोड अपना प्लस इसके साथ प्लस इसके साथ प्लस दूसरे के साथ, तो हर एक का मोड ऐसे ही है, तो डिफरेंट मोड्स हो जाएंगे. एक तो ये हो गया डिफरेंट मोड्स सेपरेटली स्टडी करें, हर एक की स्विंग इक्वेशन सेपरेटली बनाएं. दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हम इसका ओवरऑल सिस्टम बनाते हैं. वी मेक द ओवरऑल सिस्टम मीन्स इसकी इक्वेशंस लिखते हैं, इसकी इक्वेशन एक ओवरऑल x डॉट इज इक्वल टू x प्लस bu स्टेट स्पेस मॉडल. वी कैन मेक द स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ होल सिस्टम और फिर उसको सॉल्व करते हैं एंड देन वी कैन फाइंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑसिलेशंस. ओके, तो is there any question in this? No, sir. So now after this only two topics has been left in this unit. One is the one is the multi-machine stability problem. One is the this stability of multi-machine problem. कि भाई एक्चुअल उसको सॉल्व कैसे करें, मेथड. अभी तक तो जनरलाइज इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन उसकी एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द मल्टी मशीन प्रॉब्लम फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस. एंड अनदर टॉपिक इज द ट्रांजिएंट हाउ टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. क्योंकि हमारा पर्पज क्या है, सब कुछ स्टडी करने का पर्पज यही है कि हमारी अगर डिस्टर्बेंस आता है तो सिस्टम हमारा स्टेबल बना रहे. मीन्स हमें उनका we should be in a position to improve the stability of the system.